ہمارے غریب ہیں، ہم باوجود جو کہ نہیں ہونا چاہیے، دستے نگر ہیں دوسروں کے، محتاج ہیں دوسروں کے. خود خان صاحب کے دور میں بھی ہم IMF میں گئے، معاملات ہمارے بگڑے، اور ہر دور میں ہم گئے. اب بھی کوئی شوق سے نہیں جا رہا. اگر آپ IMF کا دروازہ بند کرتے ہیں، کبھی آپ اقوام متحدہ کا دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں، اس سے پہلے بھی ریگنگ ہوئی ہے. اگر اب ہوئی ہے تو کیا اس سے پہلے نہیں ہوئی ہے؟ 2018 والوں نے تو کوئی خط نہیں لکھا کسی کو، کسی نے نہیں کہا کہ IMF سے جی کہ آپ امداد بند کر دیں. وہ تو آ کے بیٹھ گئے اور اپنا فریضہ اپوزیشن کا ادا کرتے رہے. یہ ایک بڑا ہی میں سمجھتا ہوں افسوسناک طرز عمل ہے، اور ایسا پہلی بار نہیں ہوا ہے. 2022 اگست میں بھی ہوا، جب ترین صاحب کی اور ایک کنورسیشن پکڑی گئی ایک دو وزراء کے بارے میں. اس وقت بھی یہی کہا گیا کہ روکو اس کو. فواد چودھری صاحب کی سٹیٹمنٹ ریکارڈ پہ ہے جی کہ پنجاب اور KP ذمہ دار نہیں ہوں گے اگر ہمیں امداد ملتی ہے. تو میں دستبردہ عرض کرنا چاہتا ہوں، اول تو ہاؤس اس پہ غور کرے، اس پہ رائے دے، سیاست سے ہٹ کے رائے دے. کیا پاکستان کے لیے کسی بیرونی امداد کا راستہ روکنا حب الوطنی کے کون سے قرینے میں آتا ہے، کس درجے میں آتا ہے؟ یہ بہت ہی افسوسناک ہے. میں زیادہ سخت لفظ نہیں استعمال کیا کرتا، لہٰذا میں نہ مذمت کا لفظ استعمال کر رہا ہوں نہ کوئی اور لفظ استعمال کر رہا ہوں. میں صرف افسوسناک کہہ رہا ہوں، اور دکھ ہوا ہے اس موو پہ. اور میں اپنے دکھ اور اس افسوس کا اظہار اس ایوان میں کرتا ہوں کہ بھئی آپ کی دشمنی اگر کسی سیاسی جماعت سے ہے، انتخابی عمل سے ہے، الیکشن کمیشن سے ہے، عدالت سے ہے، فوج سے ہے، کسی سے بھی ہے، تو آپ باہر کے دروازے. آپ کا نعرہ ہے جی کہ غلامی نامنظور، اور آپ باہر سے توق منگوا کے ہمارے گلے میں ڈالتے ہیں. غلامی نامنظور ہے تو ان کے دروازوں پہ کیوں جاتے ہیں آپ کہ ہمیں امداد نہ دو؟ تو یہ نہیں ہونا چاہیے. یہ بہت افسوسناک ہے، اور میرا خیال یہ ایوان کو بھی اس پہ غور کرنا چاہیے اور اپنی رائے دینی چاہیے. جی سینیٹر شہادت عوان صاحب. جی یہ نمبر وائز نہیں ہے، نمبر وائز نہیں. جی سینیٹر تاج حیدر صاحب، جی آپ بتائیں. جی پبلک امپورٹنس کا ایک معاملہ ہے جناب، ٹھیک ہے. اور یہ معاملہ جی تاج حیدر صاحب بتائیں ان لوگوں کا ہے، ان ڈاکٹروں کا کہ جنہوں نے بیرون ملک جو یونیورسٹیاں ہیں ان سے MBBS کیا ہے. لائسنس انہیں درکار ہوتا ہے پاکستان میڈیکل کونسل سے، اور اس کے لیے امتحان لیا جاتا ہے. اس امتحان میں جو پاسنگ مارکس ہیں وہ جن بچوں نے پاکستان سے MBBS کیا ہے اس کے لیے تو 50% ہے، ان کو 50% پہ لائسنس مل جاتا ہے. لیکن 1201 ڈاکٹرز جنہوں نے کہ باہر کی یونیورسٹیوں سے پاس کیا ہے، ان کے لیے کہا ہے کہ جناب آپ کے پاسنگ مارکس 50% نہیں ہوں گے بلکہ 70% ہوں گے. جی بالکل. اور ان کو فیل کر دیا گیا ہے، اور اب وہ لائسنس کے انتظار میں مہینوں سے بیٹھے ہوئے ہیں. تو یہ میٹر میں بھیج دوں کمیٹی کو؟ یہ کمیٹی کو اگر بھیج جی کمیٹی جب بحال ہوگی تو یہ میٹر یہ بھیج دیں پلینوں کو. جی میں بالکل، یہ اس سے میں بھی واقف ہوں. جی بھیج دیا آپ کا میٹر. جی شکریہ جناب. ہمایون صاحب کا مائک کھولیں، سینیٹر ہمایون صاحب کا پلیز. تھینک یو چیئرمین صاحب. سر یہ کمیٹی میں پہلے بھی ہم 3-4 دفعہ ڈسکس کر چکے ہیں. ہم لوگوں نے جو PMDC جو ابھی نئی بنی تھی ری سٹرکچر ہو کے، ان کو ہم کہہ چکے، ان کی جو ایکیڈیمک کاؤنسل ہے ہم ان کو یہاں تک ہے کہ ایز اے چیئرمین اور سارے ممبران جو ہمارے کمیٹی کے تھے، ہم نے یہاں تک کہا ہے کہ اگر آپ لوگ اس پہ نہیں کرتے تو ہم اس کو پریویلیج کمیٹی میں بھی لے کر جائیں گے، کیونکہ یہ واقعی زیادتی ہے. آپ جب MBBS پاس کرتا ہے پاکستان سے، اور بہت سارے جو پرائیویٹ میڈیکل کالجز ہیں ان کا سٹینڈرڈ پرابلی باہر کے بعد میڈیکل کالجز کے سٹینڈرڈ سے کم ہوگا، تو جب ان کو آپ 50% پہ کر رہے ہو اور ان کو آپ 70% پہ کر رہے ہو، میرے لحاظ سے تو یہ آرٹیکل 25 کے بھی خلاف ہے، کیونکہ اس میں آپ کو ایکول اپرچونٹیز ہونی چاہیے. تو یہ تو اگر آپ میرے لحاظ سے دیکھیں، دس از ایون اگینسٹ دی آرٹیکل 25 آف دا کانسٹیٹیوشن آف پاکستان. ہر ایک کو ایکول اپرچونٹیز ملنی چاہیے ایک ہی لیول پہ. تو اگر MBBS کے لیول کا آپ امتحان لے رہے ہو تو ایک ہی سٹینڈرڈ، ایک ہی پاسنگ مارکس ہونا چاہیے سر. جی ٹھیک ہے. اگر آپ نے یہ ڈسکس کیا ہے تو میں پریویلیج کمیٹی کو بھیج دیتا ہوں. ہمایون صاحب اگر آپ نے کمیٹی میں ڈسکس کیا ہے تو میں پریویلیج کمیٹی کو بھیج دیتا ہوں.
लास्ट वो थी, लास्ट हमने उसमें अभी 2-3 दिन पहले हमारी हुई थी, उसमें जो PMDC थी उन्होंने कहा है कि इस पे जो उनकी एकेडमिक काउंसिल है उनकी मीटिंग हो रही है और वो एजेंडा पे रखा हुआ है. सो लेट्स मीट दैट थिंग और उसके बाद फिर लेकिन आप इसको दोबारा जरूर भिजवा दे उसमें कमेटी में, दोबारा एक दफा भिजवा दे और मूवर ताज साहब को कर दे. जी सेनेटर ज़ीशान खानदाज़र साहब. बहुत शुक्रिया जनाब चेयरमैन. चेयरमैन साहब मैं 1 मिनट लूँगा. अभी एक मौजूद सेनेटर ने इधर बात की है IMF के हवाले से और जो इमरान खान साहब ने एक लेटर लिखा है कि जो भी डेट रिस्केड्यूलिंग है उससे पहले एक ऑडिट होना चाहिए जो इलेक्शंस हुए हैं. और जनाब चेयरमैन मैं ये कहना चाहूँगा कि देखें आज से 2 साल पहले खान साहब ने ये बात की थी कि मुआशी इस्तेहकाम से पहले जो है तो एक इस मुल्क में जो है तो सियासी इस्तेहकाम होना चाहिए और मुल्की इस्तेहकाम होना चाहिए. तो जनाब चेयरमैन ये वही बात है, वो अभी भी यही बात करना चाह रहे हैं कि अगर इस मुल्क को हमने आगे बढ़ाना है तो इधर इस मुल्क में इस्तेहकाम होना चाहिए और हमारे इकोनॉमी में जो है तो एक कॉन्फिडेंस देना चाहिए. और कॉन्फिडेंस आपकी इकोनॉमी को तब मिलेगा जनाब चेयरमैन, आपकी इकोनॉमी को तब कॉन्फिडेंस मिलेगा जब आवाम को पता हो कि जिस लीडर को हमने वोट दिया है वही इस हुकूमत में आए हैं. तो आप जितना भी लोन ले लें, आप जितना भी IMF से बात कर लें, लेकिन अगर हमारे लोगों को ये कॉन्फिडेंस नहीं होगा तो वो स्ट्रेटजीज जो हैं वो बार बार फेल होती जाएंगी. तो ये जनाब चेयरमैन जो खान साहब कहना चाह रहे हैं इस लेटर में तो वो यही है. और इसके ऊपर जो है अगर आप ऐवान में बात करना चाहते हैं, इस पर कोई डिस्कशन होनी चाहिए. तो ये मेरे ख्याल से खान साहब हमेशा पाकिस्तान के बारे में सोचते हैं, इस मुल्क के लिए वो बात करते हैं, वो किसी पार्टी के खिलाफ नहीं, वो किसी हुकूमत के खिलाफ बात नहीं कर रहे हैं, वो खास तौर पे इस मुल्क के लिए वो बात करना चाहते हैं जनाब चेयरमैन. इसके साथ साथ चेयरमैन साहब मैं सिर्फ 1 मिनट ये बात कहना चाहूँगा कि देखें आज हमारे जो क्वेश्चंस थे उसमें एक सवाल था रशिया के साथ ट्रेड के बारे में. तो देखें इमरान खान साहब के टाइम पे जो मुआहिदा हुआ था तेल के हवाले से, उसके बाद उसके ऊपर कोई इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुई, वो फेल हो गई. वो एक इतना अच्छा मुआहिदा था कि हमें 30% जो है तो कम रेट मिलता पूरी बाकी दुनिया से, और वो पैकेज जो है वो बाद में इंडिया ने जाके ले लिया और पाकिस्तान ने उससे फायदा नहीं उठाया. तो खान साहब तो इस तरह के स्टेप्स लेना चाह रहे थे और अगर आगे भी कोई हुकूमत हो तो वो बेशक इस तरह के स्टेप्स लें. हम ये नहीं कह रहे हैं IMF के पास जाएं, वो हमारी मजबूरी है, हम इसको समझते हैं, लेकिन अगर वो स्टेप्स हम ले भी लें और उसका कोई फायदा भी ना हो तो ये बेसिकली हमारा एक मसला है. बहुत शुक्रिया आपका. राजा जावेद साहब बरतानिया से आए हुए हैं, उनके दोस्त भी हैं, हम आपको हाउस में वेलकम करते हैं. जी सेनेटर सरदार शफीक तरीन साहब आप क्या कह रहे थे प्लीज. मैंने ये बात ये करनी थी जो PMDC के हवाले से ताज हैदर साहब ने बात की, डॉक्टरों की वो जो एग्ज़ाम के हवाले से जो 70% और 50% पे, इसमें जो मैं हेल्थ कमेटी में मेंबर हूँ और हमारे चेयरमैन साहब ने हमारी मोहम्मद साहब ने कह दिया कि इस पे हमने 2-3 दफ़ा रिकमेंडेशन दिए. ये PMDC वाले इतने जो है बड़े लोग हैं कि वो किसी की कमेटी की मानते नहीं हैं और बजाय इसके कि आप किसी दूसरे कमेटी में जाएं प्रिविलेज में, आप यहाँ से रोलिंग दे. हेल्थ कमेटी ने भी रिकमेंड कर दिया है, उस पर आप डायरेक्ट रोलिंग दे तो मेरे ख्याल में बजाय कमेटी से जाने के डॉक्टरों का मसला हल हो सकता है. चेयरमैन कमेटी ने कह दिया कि लास्ट मीटिंग हम करेंगे उसके बाद ये फैसला होगा. चेयरमैन कमेटी ने 2 दफा कर दिया. अभी आप लोग प्रिविलेज कमेटी में भिजवा रहे, कमेटी पे कमेटी प्रिविलेज कमेटी जो फैसला करेगी मेरे पास हाउस में आ जाएगी. ठीक है सर साहब. हेल्थ की एक वो अंडर आती है, वो आपने भी बात करनी है सेम. मेहरताज साहिबा आपने भी जी माइक कॉल है मेहरताज रोहानी साहिबा का, सेनेटर साहिबा. थैंक यू वेरी मच मिस्टर चेयरमैन. ये इतना इम्पॉर्टेंट इशू है ये स्टूडेंट्स का जो हमारे डॉक्टर हमायूं और यहाँ से भी किसी ने बात की. मिस्टर चेयरमैन हर मुल्क में पास परसेंटेज 50 पे होती है, पास परसेंटेज 50 पे, 60% पे आ जाए तो कहते हैं फर्स्ट डिवीजन है, 70% पे आ जाए तो कहते हैं एक्सीलेंट है. हमारे मुल्क में
PMDC या PMC whatever it is, इन्होंने 70% मार्क्स रखे। ये एक दफा कमेटी में, मैं हेल्थ कमेटी में हूँ, एक दफा नहीं, 2 दफा नहीं, 3 दफा नहीं, 4 दफा नहीं, 10 दफा डिस्कस हुआ है। डिस्कस करके मैंने तो ठीक है सेनेटर साहब, नहीं, मेरी बात सुनेंगे तो मैंने एक दफा वॉकआउट भी किया। वॉकआउट का क्या फायदा? तो मेरा कहने का अभी रिजल्ट निकला है, 70% उन्होंने रखे हैं, एक स्टूडेंट भी पास नहीं हुआ। मिस्टर चेयरमैन, जो बाहर से आए सारे के 100% फेल हो गए, अभी परसों रिजल्ट निकला है। तो ये लाइक यू नो, आई डोंट नो रियली के कहाँ पे जाए। चाहे कमेटी है, कमेटी में तो मैं सॉर्ट ऑफ ना उम्मीद ही नहीं है, लेकिन मैं ना उम्मीद हो चुकी हूँ। एक तो ये मैंने कहना था 100% सेनेटर साहिबा मेरी बात सुने प्लीज। मैं यहाँ से ऑर्डर कर देता हूँ फौरन PMDC इसका रिपोर्ट दे हाउस को। जितने मेंबर इसके ऊपर कंसर्न हैं, जो बात कर रहे हैं जिसके ऊपर, अगर इतने इंपॉर्टेंट है तो फौरन PMDC इसके ऊपर रिपोर्ट दे। थैंक यू वेरी मच मिस्टर चेयरमैन। थैंक यू जी। इसके साथ में एक सेनेटर रुबीना खालिद साहिबा। मिस्टर चेयरमैन, अभी मेरी एक बात आपने कर दी है ना प्लीज। नहीं, इसका नहीं है ना, दूसरा है। जी, मैं दूसरा बस बताएं। कह के फिर 1 मिनट ले तो रुबीना जस्ट 1 मिनट। This is regarding Mr. Chairman, this is regarding the drugs. दवाइयों की कीमतों में अभी पेपर उठा के देखें, यहाँ पड़ा है कि कितने % राइज किया है। Right from paracetamol to brufen to anti-cancer drug to antibiotics to cephalosporin, every drug की प्राइस इंक्रीज हुई है। मिस्टर चेयरमैन, रोटी और नवाला तो हमने ले लिया, अब ये दवाई भी नहीं ले सकेंगे। नंबर और कैंसर के मरीज मिस्टर चेयरमैन जो लास्ट स्टेज में जाते हैं, वो डॉक्टर रिफ्यूज नहीं करते, लेकिन जब उनका हमें पता है कि इलाज नहीं होता तो हम छुट्टी दे देते घर पे। वो बेचारे सिर्फ पेन किलर खाते कि दर्द ना हो, और एक नींद की दवाई सेडेशन हम कहते हैं, वो 2 दवाइयां भी महंगी कर दी मिस्टर चेयरमैन। ये अखबार में आज देखें तो अब यह है कि वो मरीज से सिकता हुआ मरेगा, क्या करेगा? मरेगा तो सही, लेकिन कैसे मरेगा? पेन किलर भी कैंसर का मरीज नहीं ले सकेगा, उसकी प्राइस इतनी है, और सेडेशन भी नहीं ले सकेगा। इसका भी आप जैसे ये PMDC का नोटिस लिया, इसका भी ले लें प्लीज। जी फौरन इसका भी जवाब दें प्लीज। थैंक यू जी। जी सेनेटर रुबीना खालिद साहिबा। थैंक यू चेयरमैन साहब। जो इस एग्ज़ाम के हवाले से बातें हैं, उसके चीज़ में एक ऐड करना चाहूँगी कि ये एग्ज़ाम सिर्फ हाउस जॉब करने के लिए है। इसके बाद प्रैक्टिसिंग लाइसेंस के लिए एक और एग्ज़ाम है। तो हमने सब कमेटी ने, जितने हम थे, बार बार हमने कहा है कि ये तो एक पहला एग्ज़ाम है, नहीं तो हमारी जो कमेटी है वो जो स्टैंडर्ड्स हैं उसके लिए बहुत काम किया है। डॉक्टर हुमायूं ने, हम सब ने मिलकर उसके ऊपर बहुत काम किया है कि जो स्टैंडर्ड्स हैं वो बेहतर किए जा सके। लेकिन ये क्योंकि एक ऐसा एग्ज़ाम है जो सिर्फ हाउस जॉब के लिए अलाउ करेगा, उसके बाद प्रैक्टिसिंग लाइसेंस के लिए आपको एक और एग्ज़ाम देना है। तो अगर कोई इस तरह के लोग इनके दिमाग में हैं भी कि वो नहीं क्वालिफाई करते, तो वो वहाँ से भी निकल जाएंगे। लेकिन यहाँ पे इनको इस तरीके से रोकना ये ठीक बात नहीं है। और दूसरी बात ये है चेयरमैन साहब कि मैं यहाँ पे जो बातें सुन रही थी इस मेडिकल स्टूडेंट्स के हवाले से पहले, तो बहुत इंतहाई मैं समझती हूँ कि बहुत ये एक अलमिया है हमारा कि हमने हमेशा इस मुल्क में नफ़रत की सियासत की है। हमने इस मुल्क में हमेशा जो है एक दूसरे को नीचा दिखाने की सियासत की है। इससे बिल्कुल हमारा कोई ताल्लुक़ नहीं है ज़्यादा सियासी जमातों का कि अवाम पे क्या गुजर रही है। अवाम को IMF से, अवाम को जो है आम जो आदमी है उसको आपकी इन बातों से कोई ताल्लुक़ नहीं है उसको रिलीफ चाहिए, और रिलीफ हम सब उसको देने में नाकाम रहे हैं। लेट्स एक्सेप्ट इट। इस वक्त जो इलेक्शन के दौरान मैंने लोगों की हालत ज़ार देखी है चेयरमैन साहब, गली गली कूचा कूचा लोग एक वक्त का खाना भी जो है वो खाने से जो है उनको तक वो नहीं पूरा कर पा रहे अपने बच्चों के लिए। तो इस वक्त में इस तरह की इंतशार वाली बातें करना, इस वक्त में इस मुल्क को इस नहज पे लेके जाना कि IMF को ख़त लिखना, मैं नहीं समझती कि एक बहुत ऐसा इक़दाम है। सोचना चाहिए हम सबको, हमारे लीडर अगर गलती करते हैं तो उस लीडर की गलती को बजाय हम उसको जस्टिफाई करें, हमें उसका सोचना चाहिए, एहतसाब करना चाहिए। देखिए हमारे चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, ही इज़ द यंगेस्ट लीडर एट द मोमेंट इन पाकिस्तान, और वो जो बात कर रहा है वो उसकी तरफ ध्यान करें। वो कह रहा है इफ़हाम और तफ़हीम की बात कर रहा है, वो नफ़रत की सियासत को दफन करने की बात कर रहा है।
دیکھیں 2013 کے الیکشنز میں ہمیں بھی جو ہے تحفظات تھے جب ہم 2008 کی حکومت کے بعد 2013 کو، لیکن ہمارے زرداری صاحب کے آن ریکارڈ ہے کہ میں اسموتھ ٹرانزیشن آف ڈیموکریسی، چاہے غلط ہے یا ٹھیک ہے، پہلی دفعہ پاکستان میں ایک اسموتھ ٹرانزیشن آف ڈیموکریسی فرام ون الیکٹڈ گورنمنٹ ٹو دا اندر الیکٹڈ گورنمنٹ. ابھی بھی ہمارے 2018 میں تحفظات تھے پیپلز پارٹی کے، لیکن پیپلز پارٹی نے کبھی نفرت کی سیاست نہیں کی. آپ اٹھا کے دیکھ لیں 2008 سے لے کے 2013 تک کوئی سیاسی قیدی اس ملک میں نہیں تھا. یہ جو تقسیم کی سیاست ہے، یہ جو نفرت کی سیاست ہے، یہ جو ڈیوائیڈ کرنے کی سیاست ہے، اس کو بند کر دیں. ہمارا ملک جو ہے تباہی کے دہانے پہ کھڑا ہے. کب تک ہم یہ جو ہے ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کی کوشش میں اپنے ملک کے جو ہمارے شہری ہیں، ہمارے جو اس ملک کے غریب عوام ہیں، ان کو داؤ پہ لگائیں گے؟ کب تک؟ ٹھیک ہے کوئی وزیر اعظم بنتا ہے یا نہیں بنتا ہے، یہ اتنا امپورٹنٹ نہیں ہے چیئرمین صاحب. میرا عام آدمی جو ہے وہ کس تکلیف میں ہے وہ زیادہ امپورٹنٹ ہے. تو مہربانی کریں، جیسے کہ ہمارے چیئرمین صاحب بلاول صاحب نے بارہا کہا ہے اور کہہ رہے ہیں کہ بڑھیں، آگے بڑھیں، نکالیں ملک کو بحران سے، ایک دوسرے کا ہاتھ تھامیں. اپوزیشن کی جماعتیں ہیں یا حکومت کی بینچز پہ لوگ بیٹھے ہوئے، کوئی وے آؤٹ نکالیں، بیٹھ جائیں اکٹھے، کوئی طریقہ کار سوچیں کہ اس ملک کی عوام کے ساتھ ہم کس طرح سے کچھ بہتر کر سکتے ہیں. اور یہ جو ایک دوسرے کے خلاف بیان بازی اور اس طرح کی نفرت، اب آپ دیکھیں کہ ہمارے مذہب کے نام پہ لوگوں کو بلیک میل کیا جاتا ہے. ابھی لیٹسٹ جو آپ دیکھ رہے ہیں، ہمارے چیف جسٹس صاحب کے خلاف ایک مہم شروع ہوئی ہے، کبھی کس کے خلاف مہم شروع کر دیتے ہیں، کبھی کس کے خلاف، اور بغیر کسی ثبوت کے. ٹھیک ہے سینیٹر صاحب، مہربانی کریں چیئرمین صاحب، آپ دیکھیں یہ بہت میں ضروری اور اہم بات آپ سے کر رہی ہوں. ہم اور اس طرح کے بحرانوں کے متحمل نہیں ہو سکتے. آپ دیکھیں اپنی ملک کی عوام کی طرف دیکھیں، اپنے جیسے ڈاکٹر صاحبہ نے کہا اس وقت دوائیوں کی قیمتوں کی طرف دیکھیں، خوراک کی قیمتوں کی طرف دیکھیں. بیٹھ جائیں، چاہے جس جماعت سے آپ کا تعلق ہے، بیٹھ جائیں ملک کے لیے، بیٹھ جائیں ملک کی فلاح کے لیے اور عوام کی بہتری کے لیے. ایک دوسرے سے بات کریں، کیونکہ بات چیت کرنا بہت ضروری ہے، اس کے بغیر کسی مسئلے کا حل نہیں ہے. تھینک یو جی، تھینک یو جی. سینیٹر شہادت اعوان صاحب. الرحمن الرحیم، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. سر الحمدللہ میں اس پاکستان کی پولیٹیکل پارٹی سے تعلق رکھتا ہوں جس کے چیئرمین ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے قادیانیت کے اوپر جو ہے باقاعدہ ان کو جو اقلیت قرار دیا اور قانون پاس ہوا. اور اس کے بعد اس ایوان نے جو ہماری کتاب ہے قرآن پاک اور اس کے علاوہ مقدس حدیثیں جو ہیں، ہستیوں کے احترام کے لیے قوانین بنائے جو کہ اس کتاب کے اوپر موجود ہیں. مجھے مشتاق صاحب اور دیگر جو ہمارے سینیٹر صاحب ہیں ان کے جذبات کا احساس ہے، لیکن جس طریقے سے میری بہن سینیٹر خالدہ صاحبہ نے فرمایا کہ خدا را ایک ملک کے ایک ادارے کو ہم کسی طریقے سے اس ڈگر پہ نہ لے جائیں جو حقائق کے برخلاف ہو. تو حضور والا میں یہ کہوں گا، چونکہ میں بائی پروفیشن ایک ایڈوکیٹ ہوں، میرے ایک سینئر دوست اور بھی وکیل یہاں پہ بیٹھے ہیں، تو دوستوں کا ریکارڈ درست کرنے کے لیے پہلی بات تو یہ مشتاق صاحب نے خود فرما دیا کہ سپریم کورٹ نے خود اس چیز کی کلیریفیکیشن دے دی ہے. پاکستان بار کونسل نے اپنا اعلامیہ جاری کیا ہے، سپریم کورٹ آف پاکستان نے اس بات کا اعلامیہ جاری کیا. سر حقیقت حال کیا ہے کہ سینیٹر صاحب رانا محمود صاحب، سر آپ پلیز تشریف رکھیں، بات سن لیں ممبر. جناب چیئرمین صاحب، یہ جو فیصلہ جس کا تذکرہ کیا جا رہا ہے، ایک مخصوص ایف آئی آر کے متعلق ایک جو بات تھی وہ اس کا سر مقدمہ کیا تھا، میں دوستوں کی اطلاع کے لیے بتاؤں گا. پیراگراف نمبر 2 جو ہے اس مقدمے کے مطابق بتاتا ہے شکایت کنندہ کا الزام ایف آئی آر کے مطابق ہے کہ وہ درخواست گزار کے پاس گئے، اپلیکینٹ جو ہے گئے جو کہ ایک پیر ہیں، تاکہ ان سے دم کرائیں، اور اس کے گھر میں اس نے ایک پینا فلیکس بینر دیکھا جس پر مبینہ طور پر پیغمبر اور 12 اماموں کی تصاویر تھیں. شکایت کنندہ نے یہ ظاہر نہیں کیا کہ درخواست گزار کے گھر میں اس کے اور درخواست گزار کے درمیان کیا کچھ پیش آیا. شکایت کنندہ اس کے بعد پولیس تھانہ گیا، پولیس سے ساتھ جانے کے لیے کہا اور وہ درخواست گزار کے گھر میں داخل ہوئے.
दीवार से पैनाफ्लेक्स उतारे और कब्जा में ले लिए। सब ये था मुकदमा FIR के मुताबिक। पुलिस ने क्या किया सर कि उस मुकदमे में 295C जो है वो उस मुकदमे में लगा दी। और 295C क्या कहती है सर, वो ये कहती है, मैंने हालात वाक़यात आपके सामने पढ़े, ये कानून अल्हम्दुलिल्लाह आज हमारी किताब पे मौजूद है। C ये कहते हैं कि कुरान पाक के मुतल्लिक़ कोई बात की जाएगी तो 295C लगेगी। तो ये तो हक़ाइक़ मैंने लिख दी है। और अगर मुकदमा को 295C का होता है तो हमारे ज़ाब्ता फौजदारी की दफ़ा 156 जो है उसमें लिखा गया है कि 295C की तफ्तीश SP से कम रैंक का आदमी भी नहीं करेगा। तो जनाब, चूँकि ये मुकदमा सुप्रीम कोर्ट के सामने था तो अदालत ने तफ्तीशी अफसर जो कि पुलिस का एक जूनियर अफसर था उसे कहा कि भाई किसी सीनियर ऑफिसर को बुलाएं। अटॉर्नी जनरल साहब को बुलाया गया, सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस SSP भी उनके साथ है। उनसे पूछा गया भाई कि इस FIR में 295C का आपने जिक्र किया है, तो आप ये बताएं कि क्या इसकी तफ्तीश किसी SP रैंक के आदमी ने की? उन्होंने उसकी नफ़ी की। उसने बोला जी नहीं, किसी SP रैंक के ऑफिसर ने इसकी जो है तफ्तीश नहीं की। उसके बाद सर जो है, चूँकि मैंने बताया कि इसका जिस्ट क्या था, जिस्ट ये था एक पैनाफ्लेक्स। तो सर हजूर वाला मैं ये कहूँगा कि उन्होंने जो अदालत ने अपना ये फैसला दिया जो कि मुश्ताक साहब के पास मौजूद है, बल्कि नेट के ऊपर मौजूद है सर, उसके मुताबिक मखसूस मुकदमे के हालात में अदालत ने ये कहा कि मुद्दई खुद जो है बाद में अदालत में एक दरख्वास्त देता है कि फ़लाँ सेक्शन के तहत आप 4 फर्द जुर्म को अमेंड कर दें। तो अदालत ने यह कहा कि हजूर पहली बात तो FIR थे 295C नहीं बनता, 298 नहीं बनता, 295A नहीं बनता, 298B नहीं बनता। तो उसके बाद एक आदमी फलां जुर्म में, जबकि वो जुर्म जो है 2019 में हुआ, अमेंडमेंट 2021 में हुआ, तो अदालत ने कहा इतने अरसे से है तो लिहाजा ये हम उसको ज़मानत देते हैं। सब मेरी गुजारिश ये है कि जो कानून है उसको इस फैसले में कतई तौर पे नहीं छेड़ा गया, एक मखसूस मुकदमे के हालात के मुताबिक कहा गया। तो मेरी खाली इस्तेदा ये है कि मैं खुद अल्हम्दुलिल्लाह एक मुसलमान हूँ, जुमे का दिन है, हाफिज़ कुरान का बेटा हूँ, और अगर ऐसी कोई बात होती है तो सबसे पहले मैं आपके सामने खड़ा होता, इस ईमान के साथ चलता है। मैं खुद कह रहा हूँ मुश्ताक साहब के जज्बात और बाकी लोगों के जज्बात काबिल तहसीन है और हर मुसलमान के यही जज्बात होंगे, बिल्कुल होने चाहिए। अगर कोई कमी पेशी है कोर्ट जाना चाहिए, लेकिन सर एट द सेम टाइम मैं ये कहूँगा अल्हम्दुलिल्लाह वो चीफ जस्टिस जिसने कुरान पाक की इतनी हमारी आयात का उन्होंने तज़किरा किया, उन्होंने बाकायदा अवाम क्रॉस ना करें प्लीज, मुर्तज़ा साहब मेरे सीनियर है, मेरे प्रेसिडेंट हैं सर। बात ये सर कि अवाम की तशफ़ी के लिए एक एलामिया भी जारी किया। तो मेरा ख्याल ये है सर कि बेहतर ये होगा कि मुश्ताक साहब अपने सीनियर दोस्तों से, अपनी पार्टी के वकला से भी जो है मशवरा करें, लेकिन जब तक वो इस नतीजे पे पहुंचे, उनको यकीनी तौर पे, मैं भी उनका दोस्त कुलीग हूँ, बता रहा हूँ कि कानून को सुप्रीम कोर्ट ने नहीं छेड़ा। एक मखसूस मुकदमे के हवाले से उन्होंने कहा कि FIR ये बात करती है, पैरा 2 मैंने आपके सामने फैसले का पढ़ दिया, उसके मुताबिक उन्होंने कहा कि 290 जो है 5C नहीं लगती और उसकी तफ्तीश के भी वो तरीक़ाकार मुकम्मल नहीं किया गया, लिहाजा इन हालात में हम मुल्ज़िम को ज़मानत देते हैं। तो खुदारा एक कॉन्स्टिट्यूशनल अदारा, उसके लिए हम अबहाम पैदा ना करें, इस मुल्क के अदारों को हम काम करने दें। खुदारा मेरा वतन अजीज़, यहाँ तो हालत ये है सर कि मुख्तलिफ लोग इसको डीरेल करने के लिए पहले कभी कहते थे कि आप यो ही ख़त लिख दें वज़राए क़वानीन, और ताकि मुल्क जो है की मईशत जो है डीरेल हो जाए। अब बात यह है कि अब दोबारा इस किस्म के ख़त IMF को लिखने की बातें हो रही हैं, मुल्क जो है मुख्तलिफ मसाइल के दलदल में धंसता जा रहा है। तो मैं कहता हूँ किसी किस्म की कोई अपने नॉन प्रोफेशनलिज्म की वजह से, नासमझी की वजह से जब तक हमें तयन ना हो, तो अगर आप समझते हैं तो हमारी लैंड जस्टिस कमेटी में भी भेजें ताकि सारे दोस्त बैठ के इसको मज़ीद समझ लें। अल्हम्दुलिल्लाह मुश्ताक साहब के मैं साथ हूँ, मैं मुश्ताक साहब का मैं वकील भी बनूंगा अगर ऐसी कोई बात होगी। यकीनी तौर पे अल्हम्दुलिल्लाह सारे मुसलमान एक जगह
खड़े होंगे। अगर कुछ आप करेंगे इस फैसले में, अगर आपको कुछ बात से कम नज़र आए तो जाए। मैं यकीन के साथ मुश्ताक साहब को कहता हूँ कि कानून को नहीं छेड़ा गया, मखसूस मुकदमे के हालात के मुताबिक एक ऑब्जर्वेशन है। थैंक यू सर। थैंक यू जी। सेनेटर मौलवी फैज़ मोहम्मद साहब। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अना ख़ातमुन नबिय्यीन वला नबिय्य बादी। सदक़ल्लाहु अलैहि। जनाब चेयरमैन, इस्लाम के अंदर अकायद, आमाल, अखलाक 3 चीज़ें होती हैं। अकायद ये है कि दिल के अंदर ये है कि अल्लाह पाक है, अकेला है, उसका कोई शरीक नहीं है। अल्लाह पाक ने आदम अलैहिस्सलाम से लेकर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक जितने नबी भेजे हैं वो बरहक हैं। तौरात, इंजील, ज़बूर, कुरान, जो किताबें अल्लाह ने भेजी हैं वो बरहक हैं। मलाइका अल्लाह की मखलूक है। मरने के बाद कब्र में जाना है, फिर मैदान महशर है, फिर जन्नत और जहन्नम है। यानी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातों की तस्दीक करे, ये हैं अकायद। आमाल इबादत हैं, नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात और तिजारत वग़ैरह। अखलाक, किस तरह हम किसी के साथ पेश आएँ और क्या अपना हमारा रवैया हो, ये अखलाक हैं। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़त्म नबुव्वत का जो मसला है वो अकायद में से है। अकायद के अंदर ये है कि अगर किसी एक बात के मुतालिक कोई इनकार करे तो वो मुसलमान नहीं रहता। इस्लामी मुल्क के अंदर गुजारिश करूं कि जो लोग रहते हैं, एक मुस्लिम है जिनकी हुकूमत है और दूसरे वो जिनकी नेशनलिटी यहाँ की है लेकिन मजहब इस्लाम नहीं है। उनके यहाँ इस्लामी मुल्क के बाशिंदे हैं, चाहे वो यहूद हों, नसारा हों, हिंदू हों, सिख हों, कोई भी गैर मुस्लिम है, लेकिन इस हुकूमत को, इस्लामी को तस्लीम करके उसके आइन के तहत चलते हैं, इनको ज़िम्मी कहा जाता है। तीसरा यह है कि एक गैर मुस्लिम है लेकिन वो आता है इस्लामी मुल्क के अंदर कुछ दिनों के लिए, तिजारत के लिए आया, सैर व तफरीह के लिए, ये मुस्तामिन है, अमन लेकर वो इधर आया। अब इनके हुकूक इस्लाम ने मुतय्यन किए हैं। मुसलमानों के क्या हुकूक हैं और जिनको हम अक़लियत से ताबीर करते हैं उनके क्या हुकूक हैं, सबके हुकूक हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बता दिए हैं। माना वो अगर ईसाई है, ठीक है, उसका मजहब जो है उसके साथ हमें ये नहीं है, लेकिन इस्लामी हुकूमत को उसने तस्लीम किया, अपने घर के अंदर, अपने महल्ले के अंदर, अपने मजहब के मुताबिक वो अपनी इबादत करे और जो उसकी चीज़ें खाने की हैं, चाहे शराब हो, चाहे सूअर हो, आम नहीं, अपने घर के अंदर वो खा सकता है, शरीयत उस पर पाबंदी नहीं लगाएगा। इसी तरह हिंदू लोग, उनके भी यही, सिख हैं, उनके भी यही हुकूक हैं। और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहाँ तक फरमाया कि अगर कोई गैर मुस्लिम जिसका तुमने ज़िम्मा लिया है, अब इसके जान की हिफाजत इस्लामी हुकूमत की ज़िम्मेदारी है, माल की हिफाजत इस्लामी हुकूमत की ज़िम्मेदारी है, इज़्ज़त की हिफाजत इस्लामी हुकूमत की ज़िम्मेदारी है। अगर एक चोर मुसलमान का माल चोरी करेगा, उसका हाथ काटा जाएगा, तो एक हिंदू जो जिसकी नेशनलिटी यहाँ की है उसके माल पर भी यही सज़ा है। अगर उसको गाली देगा तो उसकी सज़ा मुतय्यन है। इस्लाम के अंदर हुकूक हैं और एक है मुर्तद, इस्लामी मुल्क में जो रहने वाले हैं। एक कौन हुए? मुसलमान, दूसरे ज़िम्मी, तीसरे जो हैं मुस्तामिन, जो कुछ दिनों के लिए आया है फिर वापस चला जाता है, उसके भी जान माल इज़्ज़त की हिफाजत करेंगे जब तक वो इधर है। और चौथा है मुर्तद, मुसलमान है लेकिन इस्लाम को उसने छोड़ दिया। मसलन वो कहता है मैं इस्लाम को तो मानता हूँ, कुरान मजीद पर मेरा ईमान नहीं है, या वो कहता है मैं अम्बिया को मानता हूँ
لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی نبی آ سکتا ہے. کسی کو نبی کہہ کر اس پر ایمان لائے تو یہ ایمان سے خارج ہو گیا, یہ مرتد ہو گیا. دیکھیں فرق ہے, وہ اپنے مذہب پہ پہلے سے ہے, اور یہ بغاوت کر کے اسلام سے جو نکلتا ہے, جیسے ایک باغی کسی ملک کا, پاکستان کا نام نہیں لیتا ہوں, کسی ملک کا فوجی اسی لباس کے اندر ملک کے آئین کی خلاف ورزی کرے اور کہے کہ میں اس کو نہیں مانتا, تو آپ اس کو کیا کہیں گے؟ باغی. وہ جو پہلے مسلمان ہیں ان کی نسل مسلمانوں کی ہے, لیکن بعد میں مرتد ہو کر اور وہ اسلام سے پھر جاتا ہے تو جیسے کسی حکومت کا باغی ہوتا ہے, یہ مرتد اسی طرح کا باغی ہے. اور غلام محمد قادیانی جس کی تاریخ آپ کو معلوم ہے, انگریز کی جو ہے اس نے کتنی خدمت کی, ان کے لیے کیا کیا کیا, مسلمانوں کو پھانسیاں دلوائیں, وہ سب کچھ ہوا. اس نے پہلے مہدی ہونے کا دعویٰ کیا, پھر اس نے کہا میں نبی ہوں, اس پر لوگوں نے کلمہ پڑھا. اور ظاہر ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اگر کوئی نبوت کا دعویٰ کرے گا وہ بھی کافر, اس کے ماننے والے بھی کافر. اگر پہلے مسلمان رہے ہیں تو اب یہ باغی ہو گئے, ان کی سزا وہی ہوگی جو باغی کی ہوگی. اور حضرت اس فرقے نے ہمارے ملک کے اندر کتنے یہ گھپلے اس نے مچائے. ہمارے بلوچستان کے اندر مرزا محمود تھا, ان کا ایک مرزا محمود, یہ جو ہے 24 جولائی 48 کو کوئٹہ میں گیا. جناب چیئرمین صاحب, یہ مرزا محمود 1948 24 جولائی کو کوئٹہ میں گیا اور کہا کہ ہمیں بلوچستان کو یہاں ہم آباد ہوں گے اور اس کو آباد کریں گے. اور پھر 11 مہینے کے بعد آیا, خطبہ دیا, اب یہ ہمارے حوالے ہونا چاہیے. اور وہاں کے علماء نے پھر لوگوں کو کہا کہ یہ غیر مسلم نبی ہے جس کے متعلق مرزا محمود یہ کہتا ہے. انہوں نے جگہ نہیں دی. آپ تعجب کریں گے کہ احمد یار خان جو ریاست مکلات کا والی تھا, جس کے ممبر تھے مولانا محمد عمر اور مولانا ارز محمد اور مولانا اور امیر غوث بخش بیزنجو, انہوں نے کلات میں پہلے جو اجلاس ہوا بلوچستان کا, اس میں بیزنجو صاحب نے جو آیت پڑھی ہے ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین, کہ بھئی یہ اسلامی حکومت ہوگی. اب وہ کلات میں جا کر اس نے سر ظفر اللہ جو وزیر خارجہ تھا ہمارے ملک کا پہلا, یہ ادھر گیا اس کے پاس کہ جی ہم آپ کے صوبے کو ایسا آباد کریں گے کہ جس کی انتہا نہیں, آپ جو ہے ہمیں یہاں رہنے دیں. انہوں نے کہا نہیں. پھر فرانس کے اندر گئے, خان صاحب اپنے مرضی سے گئے تھے, سر ظفر اللہ وہاں گیا ہوا تھا, تو ظفر اللہ نے وہاں کہا خان صاحب یہ پیرس دیکھتے ہو, اگر ہمیں آپ اپنی ریاست کلات میں جگہ تو یہ فرانس کے پیرس جیسا شہر ہم تمہارا جو ہے بلوچستان بنائیں گے, ایمان لاؤ. تو انہوں نے کہا اللہ جزائے خیر دے, اللہ اس کی مغفرت کرے. اس نے کہا دیکھو ظفر اللہ تو مجھے تنگ کرتا ہے, میں تمہیں بتانا چاہتا ہوں اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود تشریف لائیں, مجھے کہیں کہ غلام محمد قادیانی کو نبی مانو, میں نہیں مانوں گا. کہا اچھا, اپنے نبی کے کہنے پہ؟ کہا دیکھو میں بتاتا ہوں, میرے نبی نے فرمایا ہے لا نبی بعدی, میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے. میں سمجھوں گا کہ میرا امتحان لے رہے ہیں, ورنہ ان کی خبر ہے, کوئی حکم نہیں ہے کہ منسوخ ہو, اور آپ کی خبر غلط نہیں ہوتی. میں کہوں گا کہ جی اس کے بعد وہ ظفر اللہ نے چپ کیا, ہماری جان چھوٹ گئی. صاحب تشریف رکھیں پلیز. جی میں تھوڑی سی بات اپنی پوری کر لوں. اور جی یہ جو ہے آیتیں جو پڑھی گئیں, یہ جو ہمارے, ہم اس کو قاضی القضات بولتے ہیں, آپ پتہ نہیں کیا کہتے ہیں, چیف جسٹس قاضی القضات طاہر جان, جی ہاں قاضی القضات جو ہے وہ آیت پڑھتا ہے قرآن کا. خدا کے بندو ابھی تمہیں پتہ
अस्सलाम वालेकुम अब्बा जी। बड़ी खुशी हुई तुस इत्थे आए हो। तू तो मिकी इस तरह आखना पिया जिस तरह मैं तुहाड़े घर आया। पापा इनायत मैं तुसा की दसने वास्ते आया सा जे माड़ा सोसाइटी नाल एग्रीमेंट हो गया ते जेड़ी जुबान मैं उन्हां नाल कीती ओ तोड़ निभासा। इसना मतलब ते ए होया ना फरजंद कि तू असल विच मिकी धमकी देण आया सी। मैं जो किच आखना सा आखी छोड़िया। पापा पापा खलो ना, पापा गल तो सुनो। अम्मी जी तुसा पानी पियो ते कियां परेशान होने हो, कुछ भी नहीं होने लगा। कुछ नहीं होया लाले फरजंद होना, तुसा दोवें की बारों कट्ठे असने तकिया और जिस तरह उस तकिया है ना। ओहो अम्मी जी उन्होंने ते आदत ही, वैसे भी तनवीर पर उन्होंने बस नहीं चलना। तुआड़े प्यू ना भी वही हाल है। प्यू नहीं तो बिल्कुल उसकी फिक्र नहीं कि उस अपने घर भी जुलना। अला तुसा आराम करो तो फिक्र वाली कोई गल नहीं। किस तरह आराम करा, फिक्र वाली गल किया नहीं। बस अल्लाह खैर करे। शुक्रिया जी सेनेटर साहब। जी सेनेटर सैफुल्लाह अबड़ू साहब। थैंक यू चेयरमैन साहब। पब्लिक इंपॉर्टेंस पे बात कर रहे हैं ना? हाँ बिल्कुल उसी पे। हाँ प्लीज पब्लिक इंपॉर्टेंस पे। हाँ। टाइम शॉर्ट है थोड़ा प्लीज। हाँ बस वो 10 मिनट तो सबने बात की है। नहीं वो मौलाना साहब ने तफसील बताई। हाँ। अच्छा चेयरमैन साहब, 2 दिन पहले एक कमेटी बनी है कि भाई 2024 के जो इलेक्शन है उस पे कोई भी बात नहीं करेगा। अभी मुझे पता नहीं, शायद उसके पादाश में जो सहाफी है इमरान रियाज खान, उसको भी शायद कल जो है वो अरेस्ट किया गया है। आज उसकी पिक्चर भी है। मैं कि उन्होंने उक्का परवाह नहीं फुफड़ा जी। मैं कदे जिंदगी विच ना उन्होंने को एक टका भी नहीं किया। अल्लाह ना लख लख शुक्र आ कि माड़ी तनख्वाह माड़े वास्ते बहु होनी और करना अपना बिजनेस कमान पैसे। ग्राएं की मॉडर्न विलेज नी तहरीक पर मैं लाई छोड़ा तो फुफड़ा जी ज्यादा ज्यादा माड़े नाल क्या करी सकते। करो कड़ी छोड़ सन तो कड़ी छोड़। फिर मैं भी गची जिथे माड़ा दिल करसी उथे ही रहा सा अपनी मर्जी नाल। जरूरत ही नहीं जे तू अपने सके भराव नाल गल कर सके। इस हस्ते अज मैं आप तुरी ते उसने कार क्या सा। अरे मैं अपनी गल शुरू ही नहीं की सी, पता नहीं कुदरों ऐशा ते तनवीर आ रहे सन। मैं उन्हां की तकिया ते उफ उफ उसकी तकी ते मी बहु रो चढ़िया। दिल करना सा रखा सेक। जवान औलाद है नाले एडा केड़ा गुनाह किया। ना वे जरा उत्थे नहीं कीता इत्थे करी छोड़ा। एडा केड़ा रिश्ता आयशा नाल उस क्या समझिया कार थिया इत्थे ही उसकी किनी ऐसा है। देसी छोड़ उसकी अशुबात ना इस करे ना ते ना मारे ना उसका तलक की अपनी शक्ल भी न दसे। कुछ खुदा ना खौफ को ये क्या पे आखने हो। जो तू सुनिया अपनी 2 टकियां नी नौकरियां रोक किसी और पर बाए उत्थे ही रवे। मास्टर नहत ने कार ज्वाई बनी तय करना तकरीर उसको कराई की नो बस
तुम्हारे घर से क्या प्यारा है रहम फरमा। ओए खुदा नहीं है बंदी, ये क्या हाल हो गया तड़े था ना, अस्पताल भी खड़े पर तुझे तो कोई फर्क ही नहीं पिया। हाय माड़ी है चलिए जनानी है की ताड़े नाल प्यार है तो मैं क्या करा। ते हाँ वो व्हाट्सएप ना नौकर है ना, वो निक्का जिहा उम्र ज्यादा ही पर जमानदुल का नहीं नपड़िया। ओ जेड़े गिटेरी गसने हाँ हाँ ते कल मैं गया सा इस्लामाबाद शहर ते शामी मुड़सा ते पिछे इत्थे ताड़े कोल मैं उस गिड्डे की छोड़ी गया सा तां जे तू लोड़ पे ते ओ हांडी भी पकासी ते सफाइयां भी करी छोड़सी। जे बाहरों कुछ मंगाना होया ना ते वो भी किन्नी आसी। जे उसकी तकी माड़ा हासा निकलिया ते फिर ते असी किन्नी हे हथा ना खैड़ा छोड़, जमीन विकनी पे पैसा अछना पे वो शहर कोई अपना घर बढ़ासा। डॉक्टर जेड़ा भी इलाज दसिया ना तू बाहर भी खड़ना पिया ते खड़सा। हुण हथा ना खैड़ा छोड़, मिकी बस और कुछ नहीं चाहिए ना। मुन्नी मेरी जान काम नेड़े लग गया गई। ओ भट्ट साहब ਤੁਹਾਡਾ काम नेड़े लग गया तो मेरा काम तोड़ भी चढ़ गया। ए बाजी मेरी होई, मेरा दिमाग मेरे कर नालों बहुता वड्डा जे, तुसी भी जानदे हो। यार मुन्नी रियासत ते मनु बड़ा तड़सांदा है ते खाओ टिड भर के तरस, कल्ले जाओ उन्नू। कल रियासत ने मेरे नाल जाना है, कार दी चलनी जनानी कल्ली होनी है, वो हर वेले हत्थ धोंदी रहंदी हैगी। ओए ओए ते फिर कल सवेरे तू मेरे नाल जाएगा ते जद तक असी मुड़दे नहीं हैगे और तू ते कार रहेगा ते ओदी जनानी दा ख्याल रखेगा। तेरा दिमाग तेरा वड्डा हैगा ना, कोई एहो जी गल सोच क्यों हाथ धोने छड्ड दे। लो जी भट्ट साहब मैं सोचना शुरू कर दिता जी, मेरा दिमाग कल तक कोई गल लब लेगा। यार मुन्नी फिट जे चाह ते पिला यार। और गल सुन, पत्ती ठोके ते मिठा रोके। कल जेड़े हसत वाला काम हो गया ते काम अगे टुर पैना है ते सारे डेडलॉक ओपन। जुल्म खुदा ना जेड़ा भी उस तजाद नाल काम करना है उसकी कटी थे आप ही डायरेक्ट होई जुड़ना पार्टी ना तको जाफर भाई मैं इसकी इंट्रोड्यूस कराया ते आज सोसाइटी नाल डायरेक्ट एग्रीमेंट तक गल पहुंच गई। मलक चंगा उन्हें मेरे नाल भी नहीं सी कीता ते दुश्मनी उन्हें हुण तेरे नाल भी पा लई। तू वेख मैं उहदे नाल करदा किया। कसमे खुदा ने जाफर भाई माड़े वासी जो है ना ते गोली इसने सिरे बीच मारा, सिरे बीच। नहीं मलक नहीं, मैं सबक नहीं पढ़िया। मैं ते बंदा इंज मारना वा के मर भी जाए और मरे भी ना। ओ मास्टर मैं ग्रां ग्रां पिया खेडना ते असां अपनी खेड बनाई खड़ी। तो कोना तुसा आप सोचो ओ केड़ा ग्रां बचिया जेड़ा शहर ने कंडे पर आया। ओ शहर ग्रां खाने पे ते वक्त न तकाजा, वक्त खलता नहीं रहना, टुरना रहना। गल तो इसी तरह फतन साहब, पर पुराने लोग भी अपना बेला याद रखने जेड़ा उन्हां निक्के उस जवानी तक गुजारिया होना। सुनिया तुसां सोसाइटी नाल एग्रीमेंट करी किदा?
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆ ਹਾਂ ਕਰੀ ਕਿਦਾ ਤੇ ਦਰਮਿਆਨ ਵਾਲਾ ਗੰਦ ਵੀ ਸਾਫ਼ ਕਰੀ ਛੋੜਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਸੁਸਾਇਟੀ ਨਾਲ ਡਾਇਰੈਕਟ ਹੋਈ ਗਿਆ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੀ ਚਾਲ ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੜਾਸਾਂ ਗਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਕੋਲ ਸੀਮਿਤ ਥਈ ਪਰ ਜੋਬੇ ਪੈਸੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਲਾਚਾਰੀਆਂ ਤਾਂ ਹੀ ਮੁਕਸਨ ਨਾ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਜ਼ਿਮੀਆਂ ਨੇ ਪੈਸੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੱਥ ਚ ਆਸਨ चलो फिर अल्लाह तुसें की कामयाब करे पर देखे गिरान अल कब्रिस्तान ने जमीन न बेची छोड़ना क्योंकि कल अस की भी कब्र अस्ती जमीन चाहिए अल्लाह खैर करसी जमाना वो बदल गया चंगा बुजुर्गो दुआ च याद रखना अल्लाह सोने लो अल्लाह सोने तक को यार सेनेटर ताहिर बेजंजवी साहब आप बोले जी ताहिर बेजंजवी साहब। थैंक यू सर। जनाब चेयरमैन सर जी जी आप फरमाएं। जनाब चेयरमैन हमारे बलूचिस्तान में हकीकी उम्मीदवारों और नुमाइंदों बाजी जी बस करो लो मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਸਾਵਾਂ मैं ते पहले ही तू तकी ते हसनी पईया और हसासे बिल्कुल जी लो जी और ये ऐन मुमकिन है कि अगला जब इजलास हो तो नई हुकूमत तश्कील पा चुकी हो तो मैं चेयरमैन साहब आपका और चेयरमैन संजरानी साहब का और इस ऐवान का तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि बावजूद सख्त हालात और बहुत सारी शिकायतों के बावजूद आप तमाम लोग जो है वो मुझ पर बहुत ज़्यादा मेहरबान रहे हैं। मैं उसका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। थैंक यू जी। जी जो बाकी मेंबर्स हैं उनको मैं इंशाल्लाह मंडे को टाइम दे दूंगा। द हाउस स्टैंड एडजर्न टू मीट अगेन ऑन मंडे द 26 February 2024 at 3 PM
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال الملك إني أرى 7 بقرات